Hello students, today I am going to start one important class related with class 11 accountancy. In today's class we have to discuss about journal and ledger. Now here is the question. Here the student started business with cash 30,000 in June 1. In June 4 purchase furniture with GST at the rate of 18%. Within state line is very important. Purchase machinery from Hari GST 1500. Then bought goods for cash at the rate of 12% within state. Then June 15 paid for insurance premium GST at the rate of 18%. Paid for charity 200. Pass journal entry and push them into the ledger. Okay, this is the question. Now we have to solve that question according to our knowledge, that is journal, and posting them into the ledger. First we have to calculate journal. Date particulars, LF, amount is the symbol, journal entries. Okay, debit, credit is the question. Started business with cash. We know in June June 1 cash account debit to capital account. Okay, what is the value? 30,000. Being business started with cash. Okay, next one is purchase furniture GST 18% within state. Here it is written within state means there will be two GST. One is input GST, input CGST and input SGST. Why input CGST? Why input SGST? We already discussed that thing in our previous class. I think your first chapter. So we have to write furniture account debit because furniture purchase. And when you purchase something within the state, in that case you have to write input CGST account debit, input SGST account debit to cash account. What is the value? 5,000 is the value, and I think the GST value is 18%. That's why 5,000 into 18%, 950 divided into 2, 450 because we know that central government and state government will divide that 900 into 1:1 ratio or equal ratio. So that's why that 1:1 or equal ratio is equal to 450 in total 5,900. Okay, so being furniture purchased for cash. Okay, next one is June 7
Purchase machinery for from Hari, GST at the rate of 28%. Okay, so machinery account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to Hari account. Okay, 1500 to 110 to 110 1920. Okay, being machinery purchased. Then June 10 bought goods for cash at the rate of 12% within the state. Purchase account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to cash account. 5,000, 300, 300, 5,600. Being goods purchased. Okay, नेक्स्ट पेज हम लोग जाते हैं, इसे कर लेते हैं पहले. Okay, date, particulars, LF, amount, debit, credit. ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जून 10 खत्म हो गया, जून 15. इंश्योरेंस प्रीमियम, अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST account debit, input SGST account debit to cash account. 100, 9, 9, total 108. Being insurance premium paid. Okay, next June 16, paid for charity 200. Okay, charity account debit to cash account 200, 200, being charity paid. Okay, so this is the journal. Okay, so you complete our journal. Now we have to decide which account will be opened in ledger. First of all we have to write, देखो इसमें देखो अच्छी तरह से, कैश अकाउंट किस में है, इस जगह में है कैश, जून 1 में है, जून 4 में है,
फिर जून 10 में है, जून 15 में है, जून 16 में है। सो हम लोगों को कैश अकाउंट पहले करना है, इसके बाद देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट करना है, इसके बाद देखते हैं क्या फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, इसके बाद इनपुट CGST, इनपुट SGST। इसके बाद मशीनरी अकाउंट। इसके बाद हरी अकाउंट। देन परचेज अकाउंट। इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। चैरिटी अकाउंट। इन टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी टोटल 10 हम लोग को लेजर अकाउंट ओपन करना है। हम लोग कैसे ओपन करेंगे, उसका फॉर्मेट कैसा है, अभी हम लोग देखेंगे। ओके, सो पहले देखो, जैसे कि मैंने बोला कि ये मैं हम लोग का टारगेट है कि हम लोग ये 10 अकाउंट ओपन करना ही है एट एनी हाउ। सो इसमें से हम लोग अभी कैश अकाउंट को ओपन करेंगे। कैश अकाउंट लेजर का जो फॉर्मेट है वो है लाइक दिस, बीच में होगा एक ठीक है। तो इसमें डेट रहना पड़ेगा, पार्टिकुलर्स रहना पड़ेगा, और एक छोटा सा ऐसा कॉलम रहना पड़ेगा। फिर से डेट, पार्टिकुलर्स, कॉलम, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF। याद रखना JF मैंने बोला है, इसका फुल फॉर्म है जर्नल फोलियो। ओके, जर्नल फोलियो। डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। क्लियर। सो इसके बाद कैश अकाउंट है, इसके बाद क्या है, कैपिटल फर्नीचर। नेक्स्ट पेज में हम लोग कैपिटल अकाउंट है, इसके बाद फर्नीचर अकाउंट अपने पेंसिल के साथ आप ओपन कर लो। इसके बाद इनपुट CGST, इनपुट SGST। इसके बाद
मिशनरी हरी परचेज अकाउंट, ये भी साइड बाय साइड करते रहो। मशीनरी हरी परचेज अकाउंट, ओके। देन लास्ट में क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड चैरिटी अकाउंट, ये इंश्योरेंस प्रीमियम का है और ये लास्ट में है चैरिटी अकाउंट, ओके। हर एक का नाम लिख लेते पहले, कैश अकाउंट तो हो गया, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। इसके बाद है कैपिटल के बाद फर्नीचर अकाउंट, इसके बाद है इनपुट CGST अकाउंट, इसके बाद है इनपुट SGST अकाउंट, इसका भी सेम तरीके से करना पड़ेगा। लेजर में यही सिर्फ समय नष्ट होता है, वो बहुत सारा अकाउंट्स ओपन करना पड़ता है। इसके बाद मशीनरी अकाउंट, ओके। इसके बाद हरी अकाउंट परचेज अकाउंट, इसको ठीक तरीके से लिख लेते हैं एक बार। हरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट, परचेज अकाउंट, इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम चैरिटी अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम चैरिटी अकाउंट, जितना भी अकाउंट तुम्हारे जर्नल में आया है वही अकाउंट तुम्हें मेंटेन करना है लेजर में, ओके। सो ये हो गया सभी। अभी जर्नल में देखो,
कैश को लेके अभी सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग। कैश कहाँ पे है, देखो इस जगह में है। इसमें मैंने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है। याद रखना मैंने क्या बोला, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसमें कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है। अच्छी तरह से देखो, कैश अकाउंट ये तुम्हारा डेबिट साइड टू कैपिटल 30,000, ओके, जून 1। इसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST इनपुट SGST टू कैश। सो हम लोग इसमें लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 5,000। देखो पहले अच्छी तरह से देख लो, कैश तो क्रेडिट है ना, कैश के लिए क्या क्या डेबिट है, ये डेबिट है, ये डेबिट है, ये डेबिट है। सो कैश को हम लोग 2 लिखा, मगर 2 लिखने के लिए जो जो डेबिट है उसको हम लोगों को लिखना पड़ेगा अपने कैश के अकाउंट में। यानी फर्नीचर इनपुट CGST इनपुट SGST वो कैश के लिए डेबिट है, कैश के लिए डेबिट है। इस जगह में देखो, ये जो जगह था इसमें कैश के लिए वो कैपिटल क्रेडिट था, इसलिए टू कैपिटल मैंने लिखा डेबिट साइड में। अभी कैश क्या है, अभी कैश क्या है, ये कैश क्रेडिट है, खुद क्रेडिट है। तो इसके लिए, इस क्रेडिट के लिए क्या क्या डेबिट है, फर्नीचर है, इनपुट CGST है, इनपुट SGST है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस तीनों चीज को इस जगह में लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बिकॉज कैश इज क्रेडिट। इनपुट CGST बाय इनपुट SGST, जून 4 है, SGST, ओके। फर्नीचर तो लिख ही लिया, टोटल है 450, ओके। और कैश को देख लेते हैं एक बार, कैश का और कुछ बाकी है नहीं, हाँ। इस जगह में भी कैश क्रेडिट है, इसके ऊपर परचेज इनपुट CGST ये डेबिट है। तो ऑब्वियसली कैश तो क्रेडिट है, तो हम लोग कैश को क्रेडिट साइड में बिठाएंगे बाय क्या क्या है उस जगह में। तुम लोग कॉपी में देखते रहो, अपने कॉपी में जून 10 का देखो, उसमें तुम लोगों ने क्या लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST इनपुट SGST टू कैश। तो कैश तो क्रेडिट हुआ ना, तो इसके लिए बाय परचेज अकाउंट पहले लिखेंगे, कितना है वैल्यू 5,000, बाय इनपुट CGST अकाउंट कितना है 300, बाय इनपुट SGST अकाउंट कितना है 300, ओके। ये जून 10 का है तीनों, ओके। तो इसके बाद देखते हैं जून 15 में कुछ है कैश के बारे में, हाँ 15 में भी कैश के बारे में है, कैश क्रेडिट है इस जगह में। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को हम लोग क्या करेंगे, जून 15 को लिख रहेंगे अभी, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 100, बाय इनपुट CGST अकाउंट 9, बाय इनपुट SGST अकाउंट 9, बाय चैरिटी अकाउंट 200, ओके। सो ये चीज़ याद रखना। ये लिख लिया हम लोग। इसके बाद चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका भी एंट्री हम लोगों ने कर लिया। सो कैश का कुछ बचा नहीं है। अभी देखते हैं क्या क्या है जो अभी तक नहीं लिखा, जैसे कि कैपिटल अकाउंट। अभी हम लोग
इसके बाद कैपिटल अकाउंट के बारे में सोचेंगे कि सिर्फ एक ही एंट्री है, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसके बाद तुम लोग अपनी कॉपी में कैपिटल के लेके कुछ एंट्री नहीं देखोगे, तो यही हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कैपिटल को लेके क्या क्या एंट्री है। जैसे कि इस जगह में टू कैपिटल लेके एक ही एंट्री है, तो इसके लिए हम लोग कैपिटल इस जगह में क्या है, क्रेडिट है, तो कौन सी जगह में बैठेंगे हम लोग बिठाएंगे जून 1 को बाय कैश बोल के, कैश अकाउंट बोल के 30,000। ओके, ये खत्म हो गया, कैश भी कैपिटल भी खत्म। अभी फर्नीचर अकाउंट के बारे में सोचेंगे। इसमें देखो एक चीज़ अच्छी तरह से देखो, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर फर्नीचर अकाउंट डेबिट है, उस फर्नीचर के लिए कौन सा चीज़ क्रेडिट है, टू कैश, सेम चीज़ अलाउ होगा, सेम चीज़ अप्लाई होगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी में। अगर सिर्फ इनपुट एसजीएसटी के बारे में देखेंगे, उसके लिए क्या क्रेडिट है, टू कैश। इनपुट एसजीएसटी के लिए भी क्या क्रेडिट है, टू कैश। सो ये हम लोग देखेंगे जब डेबिट होगा उसके लिए क्या क्रेडिट है और उस डेबिट का वैल्यू कितना है, ठीक है, जिसका हम लोग अकाउंट अभी कर रहे हैं। मगर जब क्रेडिट कर रहे थे टू कैश, उस समय डेबिट क्या क्या था, तीनों था। सो टू कैश के लिए तीनों डेबिट है, मगर टू फर्नीचर के लिए सिर्फ एक ही क्रेडिट है, कैश। तो यही बात है जो हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा तुम लोगों को कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, उस समय सिर्फ फर्नीचर के लिए कौन सा चीज़ क्रेडिट है और फर्नीचर का वैल्यू कितना है, जिसकी 5,000। अभी लिखेंगे ये चीज़। टू कैश अकाउंट 5,000। ओके, इसके बाद देखो, इसके बाद कोई फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं है, तो सिर्फ एक ही था एंट्री फर्नीचर का। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के बारे में। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का कौन सा चीज़ है। ओके, सो देखो इनपुट सीजीएसटी का देख रहे हैं हम लोग। अपने कॉपी में देखते रहो, मैं लिखता रहूँगा, ठीक है। इसमें जून 4 में क्या है, टू कैश बोल के कॉपी में देखो, उसमें टू कैश बोल के 450 है, जून 4 का बोल रहा हूँ। जून 7 में तुमने क्या लिखा, टू हरी बोल के, टू हरी अकाउंट कितना लिखा, 210। जून 10 में इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश था। सो सिर्फ कैश का देखो, जो क्रेडिट है उसका ही देखो, वो कितना था, 300। जून 15 में सेम तरीके से कैश ही लिखेंगे, कितना लिखेंगे, ₹9। ये इनपुट सीजीएसटी है। अभी इनपुट एसजीएसटी में क्या लिखेंगे, जून 4 में सेम चीज़, सेम ही तो है ना, टू कैश अकाउंट 450। जून 7 टू हैरी अकाउंट 2110। जून 10 टू कैश अकाउंट 300। जून 15 टू कैश अकाउंट 9। तो ये चीज़ हम लोग बिठाएंगे। इसके बाद मशीनरी अकाउंट सिर्फ एक ही है, देखना मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हैरी, ये 1500 आएगा। 1920 नहीं लिखना, क्योंकि मशीनरी जब डेबिट था उसके लिए क्रेडिट क्या है, हैरी है, मगर मशीनरी का वैल्यू कितना है, 1500, तो इसका हम लोग एंट्री करेंगे।
टू हेरी अकाउंट 1500। ओके, इसके बाद हेरी का देखो, हेरी के लिए कौन सा चीज़ क्रेडिट है, सॉरी डेबिट है। मशीनरी इनपुट CGST इनपुट SGST, ये हेरी के लिए डेबिट है। तो जब हेरी अकाउंट में जाएंगे हम लोग, उस समय क्या लिखेंगे, जून 7 में बाय मशीनरी अकाउंट बाय इनपुट CGST अकाउंट बाय इनपुट SGST अकाउंट 1500 210 210। ओके, इसके बाद देख लेते हैं इंश्योरेंस। आई थिंक परचेज अकाउंट बाकी था, हाँ परचेज अकाउंट बाकी है। परचेज के लिए टू कैश है 5000, कॉपी में देखो, परचेज के लिए टू कैश है 5000। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। टू कैश डेट देख लेना एक बार, जून 10 को। टू कैश कितना है, 5000 कैश अकाउंट। ओके, इसके बाद हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में जाएंगे, उसमें भी डेट लिखेंगे, कितना डेट लिखेंगे, जून 15। टू कैश अकाउंट 100। ओके, ये हो गया। अभी चैरिटी के अकाउंट में देखेंगे, इसमें भी जून 16 में देखो अच्छी तरह से, टू कैश अकाउंट 200। ओके, ये हो गया ना तुम लोग का क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन। सो हम लोग जो आज सीखा, जर्नल के बाद कैसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं। जर्नल तो हम लोग को आता ही है, अभी उसके बाद लेज़र में कैसे पोस्टिंग होता है वो भी देख लेना अच्छी तरह से। और इसको घर में बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करना। और GST का जब मामला आएगा, विद इन स्टेट जब होगा, तभी इनपुट CGST और इनपुट SGST देंगे हम लोग। और जब इनपुट CGST और आउटपुट जो भी है, जब सेल होगा, जब आउटपुट है, जब हम लोग कोई भी अदर स्टेट से खरीदेंगे, जैसे कि हम लोग दिल्ली से कुछ चीज़ खरीद के त्रिपुरा में लेके आए, उस समय IGST देना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन में घुमा के भी दे सकता है। तो ये चीज़ याद दिमाग में रखना कि कौन समय इनपुट होगा, कौन समय, यानी कौन से समय में CGST और SGST और कौन से समय में IGST लगेगा, वो दिमाग में ये चीज़ हमेशा ही रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन को लेके बात करेंगे। ठीक है, बाय।